Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your first flight book. This is chapter 4. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank, written by Anne Frank. Here, we will study the lesson and I explain it to you along with the difficult word meanings. But lesson शुरू करने से पहले I will give you an introduction about Anne Frank. Anne Frank was born on 12 June 1929 and died in 1945. She was a German-born Jewish girl. She wrote a diary while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the Second World War. As the Nazis came to power in Germany, she, along with her family, moved to Amsterdam but got trapped when the Nazis occupied Netherlands. Now, Anne Frank was a German-born Jewish girl. तो चिल्ड्रन, ये जर्मनी में पैदा हुई थी और जेविश रिलीजन को बिलोंग करती थी. She was born on 12 जून 1929 और 1945 में इनकी डेथ हो गई. ये जर्मनी में रहती थी और जीविश थी और जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी पर नाजीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था तब एन अपनी फैमिली के साथ बचने के लिए नीदरलैंड भाग गई थी और नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टर्डम में जाकर के छुप गई थी. लेकिन वहाँ पर भी नाजीज़ ने अपना कब्ज़ा कर लिया और उन्हें पूरे 2 साल तक वहाँ छुप कर रहना पड़ा. तो एन अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 2 साल तक छुपी रही. The Jewish population was being persecuted and so the family went into hiding in July 1942 in Anne's father Otto Frank's office building. They remained in hiding for 2 years. Then they were shifted to a concentration camp where Anne died due to typhus within days of her sister Margaret Frank. Their father Otto was the only survivor of the group. जैसे कि जेविश पॉपुलेशन को मारा जा रहा था, एन अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अपने फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में छुप गई और पूरे 2 साल तक वो वहाँ पर छुपी रही. इसके बाद जब उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट किया गया तो वहाँ पहले मार्गोट फ्रैंक जो कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन थी उनकी डेथ हो गई और थोड़े दिनों बाद एन फ्रैंक भी टाइफस की वजह से मर गई. इन दोनों लड़कियों के फादर ऑटो फ्रैंक वॉज द ओनली सर्वाइवर. सिर्फ वो ही जिंदा बचे थे इन सब लोगों में से. After the war ended, he returned to Amsterdam and found Anne's diary. He got it published under the name The Diary of a Young Girl. The diary was a gift to Anne on her 13th birthday and it gives a detailed account of her life from 12th June 1942 until the final entry on 1st August 1944. जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो एन के फादर एम्स्टर्डम गए और उन्हें वहाँ पर एन फ्रैंक की डायरी मिली. उन्होंने इसे पब्लिश करवाया और ये बुक जिसका नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल थी, ये बहुत ही फेमस बन गई. एन फ्रैंक ने जिसमें अपनी पूरी डिटेल लिखी थी वो डायरी एन फ्रैंक को उनकी 13 बर्थडे पर गिफ्टेड की गई थी. The diary was originally written in Dutch language and it became one of the world's most widely read books. Many films, televisions and theatrical productions and an opera have been based on the diary. Anne Frank has become one of the most famous and talked about Holocaust victims. वो जो बुक है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल,
इसे एन ने डच लैंग्वेज में लिखा था और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। Many film, television and theatrical productions and an opera have been based on the diary. Anne Frank has become one of the most famous and talked about Holocaust victims. Holocaust victims एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस के विक्टिम्स होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम है एन फ्रैंक का। शी ऑल्सो वॉज अ victim of large scale massive destruction which took place in the Second World War। और इनकी कहानी पर ये जो डायरी में इन्होंने जो एंट्रीज की थी इस पर बेस्ड बहुत सारी फिल्म, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस और ओपेरा भी बने हैं। एंड हियर द लेसन 4 वी आर स्टडिंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी। एन फ्रैंक की ही इस डायरी के एक छोटे से हिस्से को हमारे चैप्टर के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सो चिल्ड्रन, let us begin reading this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर एन फ्रैंक क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब और अनोखा एक्सपीरियंस है। आगे क्या कहती हैं? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने कभी पहले डायरी नहीं लिखी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl। बल्कि इसलिए भी कि मेरे अनुसार मुझे मालूम है कि अगर मैं डायरी लिख भी देती हूँ तो कोई भी मेरे द्वारा लिखी डायरी को पढ़ेगा नहीं। वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा चिल्ड्रन कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे विचार क्या है। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। और अब एन फ्रैंक क्या कहती हैं कि कोई बात नहीं, भले ही मुझे एक्सपीरियंस ना हो और मुझे डायरी लिखना भले ही पसंद ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल के अंदर, यानी ये जो चिल्ड्रन एन फ्रैंक है ना, ये किसी से भी एकदम फ्रेंडली नहीं होती थी, फ्रैंक नहीं होती थी। तो इनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको ये चाहती थी कि वो किसी को बताएं, लेकिन उनके अनुसार अभी तक कोई ऐसा ट्रू पर्सन उन्हें नहीं मिला जिससे कि वो अपने दिल की बातें कह सकें। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, भले ही मुझे एक्सपीरियंस ना हो, भले ही मैंने कभी पहले डायरी ना लिखी हो, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? किस चीज़ की आवश्यकता है चिल्ड्रन? क्योंकि अब वो इस चीज़ को एहसास कर रही हैं कि उनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि वो अब दबा करके नहीं रख सकती। वो बातें उन्हें किसी न किसी को शेयर करना ही पड़ेगा। उन्हें वो सारी बातें एक बोझ सी लग रही हैं। तो आगे क्या करती हैं देखते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब चिल्ड्रन, यहाँ पर जो एन फ्रैंक है, शी इज़ कंपेयरिंग अ पर्सन विद अ पेपर चिल्ड्रन। उनका मानना है कि जो लोग होते हैं उनमें इतना धैर्य नहीं होता, इतना पेशेंस नहीं होता कि वो किसी व्यक्ति की बातों को गंभीरता से सुने, समझे और विचार करें। लेकिन हाँ, वे कहती हैं कि अगर हम पेपर को ज़रिया बनाते हैं
अगर हम पेपर के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते हैं तो पेपर साथ देगा, वो कभी भी इम्पेशेंस नहीं होगा, वो सारी बातें ध्यान से सुनेगा। चाहे आप उसे एक बार बताइए, बार बार बताइए, चाहे घंटों बताते ही रहिए, उसे कोई समस्या नहीं है। और वो ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि एक दिन वो बहुत ही डिप्रेस्ड थी चिल्ड्रन, और उनके मन में बहुत हलचल चल रही थी, वो बोर हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ना उन्हें बाहर जाने का मन कर रहा था, ना ही वो घर के अंदर ही रह पा रही थी। तभी उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना अपने जो दिल की बात है वो हम पेपर पर उतार दें। और फिर उनके दिमाग में ये बातें आई, क्योंकि पेपर ही एक ऐसी वस्तु है जो कि धैर्यवान है, और वो ही जो एन फ्रैंक है उनकी सारी दिल की बातों को गौर से, विवेकपूर्ण ढंग से, इत्मीनान से सुन सकता है, क्योंकि इंसानों में इतनी पेशेंस नहीं है। So she decided that she will put all the things that are there in her mind. I finally stayed where I was brooding. और उसके बाद बोलती हैं कि मैं, ब्रूडिंग मीन्स मतलब मन मस्तिष्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, दुखी होना, दुख के कारण कुछ समझ में ना आना कि क्या करें क्या ना करें। तो चिल्ड्रन, अब यहाँ पर एन फ्रैंक ये तय कर लेती हैं कि हाँ, मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में जो भी बातें हैं, अब मैं उन्हें पेपर पर एक्सप्रेस करूँगी। यस, पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंस, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब क्या कह रही हैं कि जो एन फ्रैंक है वो इस चीज़ को मान लेती हैं चिल्ड्रन कि यस, पेपर के पास बहुत पेशेंस है, और मैं अपनी जो भी मेरे दिल में बातें हैं, मैं अपनी फीलिंग्स को पेपर पर एक्सप्रेस करूँगी। और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो लिस्टलेस थी, उनको बहुत दुख था, तकलीफ़ था, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वो अंदर रहें, घर में रहें कि बाहर जाएं, कहीं घूम आएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ये चीज़ तय की कि मैं अपनी फीलिंग्स को पेपर में उतारूंगी। और चिल्ड्रन, क्या बताया जा रहा है, उनके पास एक डायरी रहती है जिसको इन्होंने मतलब बहुत अच्छा माना है, उन्हें उस डायरी को ग्रैंड माना है। वो कहती हैं कि मेरे पास एक डायरी है जो कि जिसमें ये गत्ता लगा हुआ है और वो दिखने में बहुत ही रॉयल लग रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब तक मुझे मेरी रियल दोस्त नहीं मिल जाती तब तक मैं डायरी को ही अपना दोस्त मान करके उसी के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करूँगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब एन फ्रैंक कहती हैं कि अब मैं इस नतीजे पर पहुंच गई हूं कि मुझे डायरी को फर्स्ट प्लेस पर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए चिल्ड्रन? क्योंकि वो कहती हैं क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world.
और फिर आगे कहती हैं कि मैं सबको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात को यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची इस संसार में, इस दुनिया में अकेली होगी। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ। I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends। और कहती हैं कि मेरे बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी 16-year-old एक बहन है और इसके अलावा ऐसे 30 लोग हैं जिसे मैं अपना दोस्त, साथी, कंपेनियन, मित्र मान सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली। और फिर कहती हैं कि मेरी फैमिली है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, यानी मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरा प्यारा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और कहती हैं कि नहीं है तो मेरे पास एक व्यक्ति नहीं है, एक चीज़ की कमी है। वो क्या है चिल्ड्रेन? वो है मेरा ट्रू दोस्त। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अब क्या कह रही हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मेरा समय भी अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन मैं सब लोगों से, यानी अपने जो दोस्त हैं उन सब से बातें तो बहुत करती हूँ, लेकिन ऑर्डिनरी एवरीडे जो थिंग्स है उनकी बातें करती हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। और कहती हैं दोस्त तो बहुत हैं, दोस्तों के साथ बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो कि मेरे इतने करीब हो, जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं और अपने दिल को हल्का कर सकूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other। और कहती हैं कि हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो या मेरी ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके कारण मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change। और कहती हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, यानी वो अपने बारे में बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि सबका नेचर मेरी ही तरह होता है। संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पल भर में मिलते हैं और बहुत ही ट्रू फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरी आदत, शायद मैं इतनी अनलकी हूँ जिसके कारण मुझ में चेंज होना स्वाभाविक नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और बताती हैं कि यही कारण है जिसके कारण मैंने डायरी लिखना शुरू किया। क्लियर चिल्ड्रन? To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this my friend Kitty. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary
the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. एन कहती हैं जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जब वे डायरी लिखना शुरू करते हैं तो वे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने पास्ट के बारे में लिखते हैं, लेकिन एन के लिए उनकी डायरी एक डायरी ही नहीं थी, एक सच्चा दोस्त था, एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड जिसका उन्हें बहुत पहले से इंतज़ार था। इसलिए वो कहती हैं कि मैंने इस डायरी को फ्रेंड का नाम दिया। क्या नाम देती हैं चिल्ड्रेन? किटी। तो वो कहती हैं कि मैंने इस फ्रेंड का नाम किटी रखा है, और इस तरह से वो बताती हैं कि उनकी ट्रू फ्रेंड अब उनकी अपनी डायरी है। एन उस डायरी के साथ ऐसे बातें करती हैं जैसे कि हम अपने फ्रेंड से करते हैं, और इसलिए उन्होंने इसमें अपनी पास्ट के बारे में या अपनी कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो चिल्ड्रेन, यहाँ पे एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर वो डायरेक्ट किटी के साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करती है, तो अगर कभी भविष्य में उनकी डायरी कोई पढ़ता भी है तो पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो कहती हैं कि न चाहते हुए भी, क्या नहीं चाहती थी वो चिल्ड्रन डायरी में लिखना? वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाहती थी, अपने पास्ट के बारे में नहीं लिखना चाहती थी। तो वो कहती हैं कि न चाहते हुए भी मुझे अपना और अपने पास्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन डायरी में लिखना ही पड़ा, ताकि भविष्य में अगर कोई मेरी डायरी पढ़े तो उसे मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता पड़ जाए। और ये सोच करके उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन डायरी में देना शुरू किया। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. अब वो कहती हैं कि मेरे पिताजी बहुत ही लविंग फादर थे, और ऐसे कोई भी फादर इस दुनिया में नहीं होंगे, और मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए, और मेरी माँ 25 ईयर्स की। माई सिस्टर मैरगॉट was born in Frankfurt in Germany in 1926. और कहती हैं कि मेरी जो सिस्टर हैं उनका जन्म फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर 1926 में हुआ। I was born on 12 June 1929. और अपने बारे में बताती हैं कि मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. And 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में ही रही, और उनके फादर जर्मनी छोड़कर हॉलैंड चले गए। एन की मदर एडिथ हॉलैंडर सितंबर के महीने में उनके फादर के पास हॉलैंड चली गई, और मार्गरेट एंड एन अपनी दादी के पास एचिन में जाकर रहने लग गई। Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो यहाँ पे एन कह रही हैं
कि दिसंबर के महीने में उनकी बड़ी बहन हॉलैंड चली गई और फरवरी में वो भी हॉलैंड चली गई और एन को उनकी बड़ी बहन मार्गोट को प्रेजेंट किया गया कि ये लो तुम्हारी जन्मदिन का तोहफा, तुम्हारी छोटी बहन। यानी चिल्ड्रन, जो एन है, एन को एक प्रेजेंट के रूप में उनकी बड़ी बहन मार्गोट को दे दिया गया और इस तरह से अब सभी लोग हॉलैंड में शिफ्ट हो गए। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupras, the headmistress. At the end of the year, we both in tears as we said a heartbreaking farewell. एन को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाया गया। व्हेन शी टर्न 6 ईयर ऑफ एज, तब उन्होंने क्लास फर्स्ट में एडमिशन ली। तो जब एन 6 स्टैंडर्ड में थी तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी वो उनकी क्लास टीचर भी थी। जब उनका ईयर ख़त्म हुआ, यानी जब एन ने अपने 6 स्टैंडर्ड के फाइनल एग्ज़ाम दिए और जब वो पास आउट हो गई तो मिसेस कूपरस और एन के आँखों में आंसू भर गए। क्यों आंसू भर गए चिल्ड्रन? क्योंकि वो सेपरेशन नहीं चाहती थी। एन को अपनी क्लास टीचर से इतना ज़्यादा स्नेह था और उसी प्रकार से क्लास टीचर भी एन को बहुत प्यार करती थी। तो दोनों ही आपस में अलग होना नहीं चाहती थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. एन कहती हैं कि 1941 में उनकी दादी माँ बीमार हो गई और दादी माँ का ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण उनका बर्थडे बहुत ही शानदार ढंग से नहीं मनाया गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. और फिर कहती हैं एन कि 1942 में उनकी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी वो मर गई। किसी को नहीं मालूम कि मैं दादी माँ को कितना प्यार करती थी और आज भी मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, भले ही वो मेरे साथ नहीं है। और कहती हैं दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. और कहती हैं कि इसी साल तो ग्रैंडमा उनकी मर गई थी, लेकिन जब 1942 में उनका बर्थडे आया तो उनका बर्थडे बहुत ही ग्रैंड वे में मनाया गया। और एन कहती हैं कि क्योंकि मैं अपनी दादी माँ को कभी नहीं भूली और इसलिए मेरे बर्थडे के पर उनके द्वारा भी एक कैंडल लगाया गया, यानी उनकी ओर से भी हमने अपने बर्थडे में उनकी ओर से भी एक कैंडल जलाए। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो चिल्ड्रेन, अभी तक एन ने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया। इंट्रोडक्शन देते देते अब वो फाइनली डेट पर पहुंच गई हैं। कौन सी डेट चिल्ड्रेन? 20 जून 1942। एन कहती हैं उनकी बहन, उनके माता पिता सब बहुत अच्छे से जी रहे हैं, यानी कि सब बहुत खुश हैं। और फाइनली एन आज की डेट पर पहुंच जाती है और आज की
डेट क्या है चिल्ड्रेन? 20 जून 1942, यानी उनकी इंट्रोडक्शन खत्म हो जाती है। तो चिल्ड्रेन, जैसे कि एन फ्रैंक अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करती हैं और वो आज की डेट में पहुंच जाती हैं और वो अपनी डायरी में पहली एंट्री लिखना शुरू करती हैं। तो पहली एंट्री लिखने के लिए, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये डायरी लिख रही हैं एन फ्रैंक। तो सबसे पहले उन्होंने दिन डाला, फिर डेट डाला, उसके बाद ईयर डाला। उसके बाद उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की। डियरेस्ट किटी, वो लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अब वो डायरी में लिखती हैं अपने स्कूल लाइफ के बारे में, लिखती हैं कि हमारा पूरा क्लास जो है क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास आर ट्रैम्बलिंग विथ फियर्स। Quaking in boots means trembling in fears. Why they are trembling? Why they are so much feared? Because the reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो चिल्ड्रेन, अपनी क्लास के बारे में एन फ्रैंक बता रही हैं, डायरी में लिख रही हैं कि हमारी पूरी क्लास बहुत ज़्यादा कांप रही थी। रीज़न ये था कि आज की डेट में हमारे जो टीचर्स हैं वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, जिसमें ये पता पड़ेगा कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन अपनी प्रीवियस क्लास में रिपीट करेगा। इसलिए चिल्ड्रेन, हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, इसलिए आधी क्लास तो आपस में एक दूसरे से शर्ती लगा रही हैं। Jean and I laughed ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holidays saving on their bets. तो यहाँ पर जैसे कि एन फ्रैंक कहती हैं कि आधी क्लास तो सिर्फ और सिर्फ बेट लगाने में लगी हुई है। जैसे कि वो बताती हैं कि हमारी क्लास के दो लड़के हैं जिनका नाम है ये सीएन एंड जैकस। तो ये दोनों लड़के हमारी सीट के पीछे वाली बेंच में बैठते हैं और ये लोग भी शर्त आपस में लगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उन लोग? कह रहे हैं सुबह से लेकर के रात तक उनका यही कहना रहता है, एक दूसरे से कहते हैं, शर्त लगाते हुए कहते हैं, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि अरे तुम पास हो जाओगे, तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। तो इस तरह की ये उनकी जो बातचीत है उनके बारे में ये एन ने यहाँ पे बताया है कि वो इस तरह से आपस में शर्त लगा रहे हैं। तो आगे एन बताती हैं कि इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन। कहती हैं कि मेरी जो फ्रेंड है जिनका नाम है जीएन, वो तो बहुत ही शांत स्वभाव की हैं चिल्ड्रेन। एन फ्रैंक कहती है कि वो तो बहुत ही, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बहुत ही पोलाइट ढंग से अब हमारे पीछे जो दो लड़के थे उनको पोलाइट ढंग से बोला कि भाई आवाज़ मत करो, शोर मत मचाओ। और यहाँ तक कि वो तो जो जीएन है वो तो बहुत पोलाइट से उनको बता रही थी, लेकिन एन फ्रैंक कहती हैं कि मैंने तो उनसे बहुत ही रूडली वे में उन लोगों को स्कोल्ड किया, डांटा कि शांति बनाए रखो। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब यहाँ पर ये जो एन फ्रैंक है वो कहती हैं कि अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि इस क्लास में क्वार्टर क्लास तो डमीज़ है, यानी क्लास की 1
फोर्थ जो बच्चे हैं वो डमीज़ है। डमीज़ मीन्स द पर्सन हु कांट लर्न प्रॉपरली, यानी जिनको कोई चीज़ सिखाया जाए तो वो जल्दी से सीख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एन फ्रैंक बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी क्लास में जो 1/4 बच्चे हैं वो तो एकदम बेकार हैं, पढ़ाई में एकदम ज़ीरो हैं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। एन फ्रैंक कहती हैं कि टीचर्स तो इस पृथ्वी पर सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, मतलब वो कब क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, वो किसी को मालूम नहीं है। यानी जो एन फ्रैंक है वो ये कहना चाहती हैं कि टीचर किस बच्चे को पास करेंगी, किसको फेल करेंगी, वो किसके बारे में क्या सोचती हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. अब एन फ्रैंक क्या कहती हैं कि मुझे अपने बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में, चिल्ड्रन यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स मतलब होता है एन के क्लास की वो सारी लड़कियाँ जो कि उसकी फ्रेंड्स है। तो वो कहती हैं कि मुझे अपने बारे में और अपने फ्रेंड्स के बारे में कोई चिंता नहीं है, मुझे यकीन है कि हम सब लोग पास जरूर हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। तो वो कहती हैं कि मुझे बस एक ही सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डाउट है, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट until then we keep telling each other not to lose heart. अब एन ये भी कहती हैं कि भाई जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंतज़ार। तो हमें सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। और कहती हैं कि हम लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे, क्या कह करके कि भाई हार्ट लूज मत करो। हार्ट लूज मत करना मतलब धैर्य रखो, परेशान मत हो, सबके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि चिल्ड्रन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, बच्चे सभी नर्वस थे, इसीलिए ये एन कहती हैं कि हम लोग का काम सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार करना ही था और हम एक दूसरे को धैर्य बंधा रहे थे कि भाई रिजल्ट अच्छा ही होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब यहाँ पे एन फ्रैंक कहती हैं कि उनका जो रिलेशन था टीचरों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था और टीचर्स भी उन्हें बहुत मानती थी क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट गर्ल थी। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। और कहती हैं कि उनको जो पढ़ाने वाले जो टोटल टीचर्स हैं वो कितने हैं चिल्ड्रन, 7 मेल हैं एंड 2 फीमेल हैं। दैट मीन्स कुल मिलाकर के कितने टीचर्स हुए, 9 टीचर्स। Mr. Keesing, the old forge who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। और कहती हैं कि उनके एक मैथ्स के टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, जो कि एन ओल्ड फैशन पर्सन है। एन कहती हैं कि मेरे मैथ्स के जो ये सर हैं वही एक ऐसे टीचर है जो कि मुझसे बहुत दिनों से, फॉर एजेस यानी बहुत दिनों से नाराज़ ही रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और कई बार उन्होंने तो मुझे वार्निंग दिया कि भाई क्लास में, रनिंग क्लास में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा नेचर था, मैं बात कर ही लेती थी, जिसके कारण वो बार बार जब वार्निंग दे करके थक गए तो एक दिन उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, होमवर्क दे दिया। उन्होंने मुझे क्या वर्क दिया, क्या होमवर्क दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। ही आस्क्ड मी, ही गेव मी अ टॉपिक टू राइट
an essay on a topic a chatterbox. So अब ये जो एन फ्रैंक है वो बताती हैं कि दूसरे बच्चों को ये होमवर्क नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, क्लास में बात करती थी, वार्निंग के बावजूद भी मैंने अपनी ये क्वालिटी नहीं छोड़ी, तो सर ने नाराज़ होकर के मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस अ चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखना है। चिल्ड्रन, चैटर बॉक्स मतलब टॉकेटिव, यानी ये टॉपिक दिया ये एन को कि बातें करने के ऊपर तुम एक ऐसे लिख करके लाओगी। जैसे ही ये ऐसे का नाम जब एन फ्रैंक ने सुना तो वो चौंक गई। वो सोचती हैं अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो सोचती हैं कि अरे चैटर बॉक्स पर मैं क्या लिखूंगी भाई। उसके बाद अपने आप को कंसोलमेंट दिया, क्या कह करके चिल्ड्रन, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। फिर एन फ्रैंक कहती हैं कि अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पर चिंता करने के लिए, इसके लिए मैं बाद में चिंता करूँगी जब मैं इस ऐसे को लिखने बैठूँगी। ये डिसाइड किया और फिर उसने चैटर बॉक्स के ऊपर क्लास टाइम में सोचना एकदम बंद कर दिया। I jotted down the title in my notebook. Jotted down means I wrote down. मैंने वो जो ऐसे था उसको मैंने अपनी नोटबुक में उतार लिया and after that I tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने सर के द्वारा दिया गया ऐसे को अपने नोटबुक में लिखा, फिर उस नोटबुक को मैंने बैग में रख दिया और उसके बाद मैंने कोशिश की कि अब मैं बात नहीं करूँगी। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. शाम के समय एन फ्रैंक कहती हैं कि जब मैंने अपना सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट कर लिया तभी मेरी निगाह उस कॉपी पर पड़ी जिसमें मेरे सर ने मुझे चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए दिया था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my फाउंटेन पेन। और कहती हैं कि मैंने कॉपी निकाली और उस टॉपिक पर क्या लिखूं सोचने के लिए मैं अपने पेन को अपने मुंह में डाल करके चबाती रही और सोचने लगी कि मैं आखिर इस टॉपिक में क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. अब एन फ्रैंक कहती हैं कि कोई भी ऐसे को लिखने के लिए दूर दूर शब्दों को लिख करके और एमलेसली, यानी जिसका कोई भी एम ना हो, यूं ही 3-4 पेज फिल कर सकता है लिख करके। यानी उनके कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहती तो मैं भी अक्षरों को दूर दूर लिख करके शीट को भर देती और उसमें अ चैटर बॉक्स के बारे में एमलेसली, जिसका कोई एम ना हो, यूं ही अनायास ही मैं उसमें बहुत चीज़ लिख सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया चिल्ड्रन? क्योंकि एन फ्रैंक जो हैं वो एक इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उनका ये मानना था कि मैं, जो मेरे मैथ्स के सर हैं, जो मेरी इस क्वालिटी को बहुत बुरा मानते हैं, मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ, उन्हें कन्विंस करना चाहती हूँ कि सर ये जो क्वालिटी है ये क्वालिटी भी एक अच्छी क्वालिटी है और जीवन में ये क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो चिल्ड्रन, जो एन फ्रैंक थी वो इस क्वालिटी को अच्छा क्वालिटी साबित करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि मैं अननेसेसरी एमलेसली शब्दों को दूर दूर करके शीट फिलिंग वाला काम नहीं करूँगी। और क्या किया उन्होंने? I thought and suddenly I had an idea. कहती हैं कि मैंने खूब सोचा और उसके बाद मेरे दिमाग में विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me
and was satisfied. और मैंने फिर बहुत सोचने के बाद मैंने 3 पेजेस जो टॉपिक मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिया था उस टॉपिक पर मैंने 3 पेजेस मैंने लिखा और उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हुई। यानी मैंने जो टॉपिक सर ने मुझे दिया था उसमें 3 पन्ने लिखा और जो भी मैंने मैटर लिखा उसमें उस मैटर से मैं सेटिस्फाइड थी। आगे क्या कहती हैं, अब बता रही हैं कि आखिर उन्होंने उसमें लिखा क्या है। I argued that talking is a good student trait and that I would do my best to keep it control. अब बोलती हैं कि मैंने उसमें लिखा कि हालांकि टॉकिंग करना एक स्टूडेंट की अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अंडर कंट्रोल में रहूँ, यानी मैं ज़्यादा बात ना करूँ। बट आगे बताती हैं, ऐसे में लिखती हैं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और लिखती हैं अपने ऐसे में कि एक्चुअली में मैं अपनी ओर से तो बहुत कोशिश करूँगी कि मैं अब बात करना बहुत बहुत कम करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये शायद मेरे हैबिट में नहीं हो पाएगा, यानी मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी चिल्ड्रन? क्योंकि जो मेरी माँ है वो भी बहुत ही टॉकेटिव थी और उन्हीं की तरह उन्हीं की ये हैबिट मुझ में भी इनहेरिट हो गई है। तो इस चीज़ को तो आदमी कह सकता है ना कि भाई जब मेरी माँ इतनी टॉकेटिव है तो मैंने जो भी क्वालिटी गेन की है वो अपने पेरेंट्स की गेन की है, तो मेरी माँ वाली क्वालिटी ये मुझ में आ गई है और इस क्वालिटी को मैं अपने अंदर से हटाना बहुत मुश्किल समझती हूँ। ये चीज़ें चिल्ड्रन उन्होंने जो ऐसे अपने सर को दिया लिख करके, उसमें दिस थिंग शी हैज़ मैंशन। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो अब बताती हैं, एन फ्रैंक कहती हैं कि जब मैंने हर पॉजिटिव बातें चैटर बॉक्स के ऊपर लिखी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, जीवन में टॉकेटिव होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने इस टॉपिक पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं लिखी थी। तो मिस्टर कीजिंग ने जब इनकी इस पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा हुआ ऐसे पढ़ा तो वो बहुत हंसे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। और उसके बाद क्या कह रही हैं एन फ्रैंक, कहती हैं कि मैंने फिर, क्योंकि मैं टॉकेटिव थी तो मेरी ये आदत इतनी जल्दी तो बदल जाती नहीं, तो मैं फिर भी अपने आप पर मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी मैं उनकी क्लास में बातें करती ही रही और वो मुझे रोक नहीं पाए और इसलिए उन्होंने मुझे फिर नेक्स्ट दिन जब वो क्लास में आए तो उस दिन जब उन्होंने मुझे दोबारा पकड़ा, मैं बात करती हुई पाई गई, तो उन्होंने अब सेकंड डे मुझे एक और ऐसे दे दिया। यानी चिल्ड्रन यहाँ पर ये जो एन फ्रैंक है, एन फ्रैंक को फर्स्ट डे सर ने अ चैटर बॉक्स ऐसे लिखने के लिए दिया और सेकंड डे उन्होंने ये सोचा था कि शायद अब ये जो एन फ्रैंक है अब अपनी इस हैबिट में चेंज लाएंगी, लेकिन सेकंड क्लास जब वो आए तब पर भी इनमें कोई चेंज नहीं था, वो टॉकेटिव थी ही और टॉकिंग कर रही थी। तब इन्होंने सेकंड डे इनको फिर से एक ऐसे दिया। देखते हैं क्या ऐसे देते हैं ये। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे जब उन्होंने जो इनको ऐसे दिया वो था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। दैट मीन्स जिसका मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी
करेक्टेड अ बैड क्वालिटी। तो उन्होंने ये चीज इस टॉपिक में दिया, यानी सेकेंड ऐसे में उन्होंने दिया कि ये जो चैटिंग का काम है, लगातार बातें करने का काम है, ये बैड क्वालिटी है, इसके ऊपर तुम अब ऐसे लिखो। क्लियर चिल्ड्रन? अब क्या होता है तो आगे देखते हैं। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। और जब मैंने उस पर भी ऐसे मैंने लिख करके दिया, तो ये जो मिस्टर कीजिंग जो मेरे मैथ्स के सर थे, फिर उन्होंने आगे के 2 दिन, पूरे 2 दिन उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं की। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay titled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब चिल्ड्रन यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ जो एन फ्रैंक को जब पहली बार लेसन ऐसे लिखने के लिए दिया गया, टॉपिक क्या था चिल्ड्रन? अ चैटर बॉक्स। तो उन्होंने उस पहले लेसन में, उस पहले ऐसे में इन्होंने जो भी लिखा उसको पढ़ करके जो मिस्टर कीजिंग थे वो बहुत हंसे। और नेक्स्ट डे फिर भी जब ये इनकी हैबिट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में उन्होंने इनको फिर से एक और ऐसे दे दिया जो कि नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी बैड क्वालिटी ऑफ चैटर बॉक्स। इस पर ऐसे लिखने के लिए कहा। एन फ्रैंक ने इस टॉपिक पर भी ऐसे लिखा और उन्हें दे दिया। तब मिस्टर कीजिंग ने 2 दिन तक अपनी क्लास में एन को कुछ नहीं बोला। हालांकि उनकी एन की आदत थी बातें करना, वो बातें कर नहीं थी, लेकिन 2 दिन, आने वाले 2 दिन में जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने एन को बर्दाश्त किया। और फिर तीसरे दिन चिल्ड्रन, अब फिर तीसरे दिन ये जो मिस्टर कीजिंग थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ एन की बात करने की आदत, और फिर उन्होंने उनको फिर एक ऐसे पकड़ा दिया। और अब का टॉपिक क्या था चिल्ड्रन? क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो अब उन्होंने तीसरा ऐसे दे दिया जिसका टॉपिक दे दिया कि क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस। यहाँ पे मिस्ट्रेस कौन है चिल्ड्रन? एन के लिए वो बोल रहे हैं कि अब तुम इस पर ऐसे लिखो। अब क्या होता है, जैसे ही एन को 3rd ऐसे मिलता है चिल्ड्रन, तो सारी क्लास हंसने लगी। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatter boxes। अब एन कह रही हैं कि जब मुझे 3rd ये बार ऐसे लिखने के लिए दिया गया तो सब बच्चे जो से हंसने लगे और मैं भी जो से हंसने लग गई। और मैं ये सोच रही थी कि अब 3rd टॉपिक जो सर ने मुझे दिया उसमें मैं क्या लिखूं, क्योंकि उन्होंने अब आगे के जो 2 ऐसे थे उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें, जेन्यून बातें उसमें लिख चुकी थी। अब उनके पास कोई मैटर था नहीं, कोई भी ओरिजिनल मैटर था ही नहीं जो कि वो 3rd ऐसे में लिख सके। तो क्या हो रहा है चिल्ड्रन, बार बार जो एन फ्रैंक है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी, बातें ही करती रहती थी, और जिसके कारण उनके सर भी बार बार एन फ्रैंक को ऐसे के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिए जा रहे थे। It was time to come up with something else, something original. My friend Sen, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब क्या हुआ चिल्ड्रन,
जब इनको तीसरी बार ऐसे लिखने के लिए दिया गया तो ये थोड़ा सा नर्वस हो गई, क्योंकि अब उनके पास कोई भी बात बाकी नहीं थी जिसके मतलब जो चीज़ वो लिखे, क्योंकि उन्होंने अपने सारे आइडियाज़ 2 ऐसों में ऑलरेडी लिख चुके थे। अब उनके पास कोई ओरिजिनल आइडिया, कोई विचार, कोई थॉट नहीं था कि वो थर्ड वाले ऐसे में लिखें तो लिखें क्या लिखें। तो चिल्ड्रन, उनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था सेन। वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और पोइट्री में बहुत गुड थी, बहुत ही अच्छी थी। तो उस सेन ने जब एन फ्रैंक को देखा कि भाई ये नर्वस दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी और इस बार तुम पोइट्रिक वे में, वर्स मतलब पोएटिक वे। तो अब सेन ने कहा कि इस बार मैं तुम्हारी मदद करूँगी और अब तुम ऐसे वर्स में लिखना, यानी पोएटिक फॉर्म में लिखना। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब जब सेन ने हेल्पफुल हाथ बढ़ाया एन फ्रैंक के पास, तो एन बहुत खुश हो गई, क्योंकि सेन एक अच्छी लड़की थी। अब उन्हें लगा कि हाँ, अब मैं ऐसे थर्ड ऐसे जो सर ने दिया है उस पर भी मैं कुछ ओरिजिनल ही लिख पाऊंगी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. अब यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रेन, यहाँ पर जो मिस्टर कीजिंग है वो इस तरह के टॉपिक एन फ्रैंक को दे रहे थे जिससे कि वो उसका क्लास में मजाक बन जाए। लेकिन जो एन फ्रैंक है वो भी इस तरह से ऐसे लिख रही थी और ये शो करना चाहती थी कि वो उनका जो ये क्वालिटी है, उनका ये जो बोलने की आदत है वो एक अच्छी क्वालिटी है। यानी दोनों लोग, मिस्टर कीजिंग जो है वो एन फ्रैंक का मजाक बनाना चाहते थे और जो एन फ्रैंक है वो मिस्टर कीजिंग का मजाक बनाना चाहती थी और ये प्रूफ करना चाहती थी कि यस, द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी इन लाइफ एंड दिस इज़ द एक्सीलेंट क्वालिटी। तो ये दोनों ही एक दूसरे का मजाक बनाने के लिए तैयार थे। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. तो चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर जो एन फ्रैंक ने जो पोएम लिखी वो बहुत ही खूबसूरत पोएम थी और वो पोएम थी एक मदर डक और फादर स्वान की, जिनके 3 डकलिंग्स थे, यानी उनके 3 बच्चे थे और जिन बच्चों को फादर स्वान ने मार डाला। क्यों मार डाला चिल्ड्रेन? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे, बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते रहते थे और इसलिए फादर स्वान ने अपने डकलिंग्स को मार डाला। तो ये तो उन्होंने अपनी पोएम में लिखा था वर्स के माध्यम से, पोएटिक वे में। जब एन फ्रैंक की ये पोएम मिस्टर कीजिंग ने पढ़ा तो उन पर क्या असर हुआ देखते हैं। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। चिल्ड्रेन, अब जब इन्होंने मिस्टर कीजिंग ने इस पोएम को पढ़ा तो उन्होंने इसको राइट माना। उन्होंने इस जो पोएम है इसको पॉजिटिव वे में लिया और क्या किया उन्होंने, ही read the poem to the class adding his own comments and to several other classes as well. पॉजिटिव लिया चिल्ड्रेन और उन्होंने ये जो पोएम थी जो एन फ्रैंक ने लिखी वो पोएम क्लास में सब बच्चों के सामने रीड आउट किया और एन फ्रैंक को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिया कि तुमने कितना अच्छा पोएम लिखा है। यही नहीं चिल्ड्रेन, उन्होंने एन फ्रैंक की ये पोएम और भी दूसरी क्लासेस में भी बच्चों के सामने पढ़ कर के सुनाई और इस तरह से वे एन फ्रैंक के द्वारा लिखी
हुई पोयम से बहुत अधिक खुश हुए। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. एन फ्रैंक कहती हैं, इस तीसरे ऐसे ने मिस्टर कीजिंग पर इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाला कि अब मिस्टर कीजिंग ने मुझे अलाउ कर दिया बात करने के लिए क्लास में, और अब अगर मैं बात करती भी हूँ तो मुझे कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट होमवर्क के रूप में नहीं मिलता। और अब मिस्टर जो कीजिंग है वो थोड़े से लाइवली हो गए। अब वो बच्चों से इंटरेक्ट करने लग गए। अब हमेशा जो सीरियस रहा करते थे, अब उनकी ये जो क्वालिटी है ये ख़त्म, मतलब ये जो अच्छी क्वालिटी नहीं माना जाता था, ये क्वालिटी उनमें से गायब होना शुरू हो गई। अब बच्चे भी उन्हें पसंद करने लग गए, बच्चे भी उनसे इंटरैक्ट करने लग गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब देखिए एन फ्रैंक की इस पोएम का कितना बड़ा असर हुआ। अब ये जो मिस्टर कीजिंग थे, अब ये बच्चों के साथ जोक करने लग गए। वो मिस्टर कीजिंग जो कि बहुत ही सीरियस रहते थे, बच्चों के थोड़ा सा भी गलत बिहेवियर पर उन्हें पनिश करते थे, बच्चों के साथ कभी फ्रेंडली नहीं रहते थे, हमेशा बच्चों को डांट फटकार सुनाया करते थे, हमेशा उनसे बच्चे डरे सहमे रहते थे। लेकिन आज वही मिस्टर कीजिंग में एक बहुत बड़ा चेंज आया चिल्ड्रन, इस पोएम के वजह से, इस राइटिंग के वजह से, जो कि किसने लिखा था? एन फ्रैंक ने। तो आज ये जो मिस्टर कीजिंग में सबसे बड़ा चेंज लाने का श्रेय किस पर जाता है? एन फ्रैंक के एसेज पर जाता है, एन फ्रैंक को जाता है, क्योंकि ये तभी संभव हुआ जब इन्होंने एन फ्रैंक्स के पोयम को पढ़ा। तो चिल्ड्रन, ये जो लेसन है उसमें जो एन फ्रैंक हैं उन्होंने अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताया, और इन्होंने ये घटना, क्योंकि ये डायरी जो जिसका नाम इन्होंने किटी रखा था उसे अपना फ्रेंड मानती थी, तो इन्होंने ये पहला एक्सपीरियंस अपने स्कूल लाइफ का डायरी में लिखा, और लास्ट में उन्होंने लिखा योर्स एन, क्योंकि जब हम कंप्लीट करते हैं कोई भी चीज़ तो लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह से एन ने अपनी पहली डायरी में जो पहला मतलब राइटिंग लिखी वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में लिखा, और इस तरह से चिल्ड्रन उन्होंने अपना ये जो राइटिंग है ख़त्म किया। होप you all would have understood the lesson well. So children, I would request you to go through the chapter once again and try to understand the thing. If any queries are there, you can contact me and get it solved. Thank you and have a nice day.